Hello dear students, myself Dr. Neetu Agrawal from Government VYT Autonomous College Dul is here to present thermoregulation. This is the part of MSc 2 semester Zoology paper 2 unit 1. So first we should know that what is thermoregulation. Thermoregulation is the ability of an organism to keep its body temperature constant, or we can say that it is a homeostatic mechanism which helps in regulating body temperature at a constant level. So, what is the importance of keeping temperature constant? Because when the temperature goes below our body temperature or core body temperature goes below 26 degrees centigrade, then it may be lethal for us, and it can cause cardiac failure, or it goes above 43.4 degrees centigrade, so it can cause heat stroke, and it may be also lethal for a person. There are two types of animals on the basis of temperature regulation. As we all know about this, homeothermic animals are those animals whose body temperature remain constant, and the poikilothermic animals are those animals whose body temperature varies according to the environmental temperature. So, and homeothermic animals are also called endothermic animals, as they use metabolic heat to maintain a stable internal temperature. And the ectothermic animals do not use metabolic heat to maintain their body temperature, but they depend on their external environment for their body heat. So endotherms are those animals who use thermoregulation strategy to maintain a constant internal body temperature to survive. So what is the normal body temperature of human being? As we all know that the body of human being is divided into two parts. Inner core area or inner part, which includes intracranial part, intrathoracic, intra-abdominal, lungs, visceral part. So it is called core area, and the peripheral part, which includes limbs, skin, peripheral region, is called shell part. So temperature of core area is always more than the oral temperature or the normal peripheral temperature, and core temperature is always constant. It is 37 degrees Celsius, or we can say it is 98.6 degree Fahrenheit. But the peripheral temperature always varies according to the environmental conditions or the activity of the body. Mechanism of heat balance in the body. How heat remain balanced in our body. So there are two processes. One is thermogenesis and one is thermolysis. These two processes occurs in our body according to the environmental conditions. Whenever body requires heat, it produces heat through thermogenesis. Whenever body requires to lose heat from the body, it lose heat through thermolysis. Mechanism of heat production is known as thermogenesis. तो थर्मोजेनेसिस किन किन चीज़ों के द्वारा हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि जो भी हम फूड खाना खाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, लॉट्स ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज जो है वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, लॉट्स ऑफ हार्मोन्स लाइक थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन, दे इंक्रीज बीएमआर ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोड्यूसेस हीट. Radiation. Heat radiates from the environment. As the environment is warmer from the body, then heat radiates from environment to the body. Shivering. What is shivering? Shivering, exposure to cold causes rapid involuntary muscular contraction called shivering. So shivering also produces heat in our body. Heat is also produced by liver, heart, internal secretions like secretions of enzyme, digestion, and hot food. Now, what are the mechanism of heat loss? So heat is lost from the body through skin, lungs, excretions, gastrointestinal tract, but most of the heat is lost through the skin.
एंड लंग्स एक्सक्रीशन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस होती है। सो फ्रॉम स्किन जो हीट लॉस होती है उसमें कौन कौन से मीन्स है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवापोरेशन। About 60% heat is lost through radiation, 3% through conduction, 15% through convection, and 22% through evaporation. So first we will see how radiation occurs from the body. So normally human body radiates heat rays in all directions, and it depends on the temperature of the surrounding air. And surface area of the body, radiation from the radiation of heat from body is also depends on the surface area of body, emissive power of the body, and the difference in temperature between radiating body and the surrounding objects. About 3% heat is lost through the conduction. When our body remain in contact of some solid object like chair, bed or table, so it loses heat through conduction to this solid object. So about 3% heat is lost through conduction. Third is convection. Convection के द्वारा करीब 15% हीट जो है बॉडी से लॉस होती है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, बॉडी से जो हीट सराउंडिंग एयर में पहले कंडक्ट होती है, और ये कंडक्टेड जो हीट है ये एयर करंट के द्वारा बाहर ली जाती है, मतलब तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स जब कभी भी हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर हमेशा बॉडी से निकलता रहता है नॉर्मली, तो जो स्किन से, लंग्स से, और जो हमको मालूम भी नहीं होता, तो दिस इज कॉल्ड इनसेंसिबल परस्पिरेशन और इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो इट इज अबाउट 50 ml पर आवर, एवरी आवर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर जो है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ इवापोरेशन लूज होता रहता है। और जब 1 ग्राम वाटर जो लूज होता है बॉडी से, इससे हमारी बॉडी से करीब 0.58 कैलोरी जो है वो लॉस होती है। तो इस तरह से अगर 50 ml वाटर पर आवर लूज हो रहा है तो उस हिसाब से कितना हीट हमारी बॉडी से लॉस होती है। तो ये सब कंडीशंस कब होती हैं, जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। स्वेटिंग जो होती है हमारी बॉडी में, ये भी बॉडी से मतलब पानी का एवापोरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, और ये भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर जब को डिक्रीज करने में मदद करता है। पैंटिंग, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्वेट ग्लैंड नहीं पाई जाती, उनमें जैसे डॉग है, तो इनमें जो एवेपोरेशन होता है वो लंग्स के और सलाइवा के द्वारा होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यह डॉग जो है पैंटिंग प्रोसेस के द्वारा हीट को एवेपोरेट कर रहे हैं, इसमें मॉइस्ट हीट भी निकल रही है, प्लस इनकी सलाइवा गिर रहा है इनके टंग से। So what is panting? Panting is the rapid shallow breathing associated with dribbling of more saliva is known as panting, which occurs in those animals who do not have sweat glands. Next is the mechanism of thermoregulation. What is the mechanism of thermoregulation? Thermoregulation has 3 mechanisms. So it includes afferent sensing, central control by hypothalamus and efferent responses. तो afferent sensing में क्या आता है कि हम सबको मालूम है हमारी बॉडी में थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी बहुत सारे हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो कोल्ड और हीट के स्टिमुलस को हाइपोथैलेमस तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो पहुंचाने का काम करते हैं वो एफरेंट सेंसिंग के अंतर्गत आते हैं। एंड नेक्स्ट है सेंट्रल कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि थर्मोस्टेट कहलाता है बॉडी का, जिसका मेन काम है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना, ये मेन सेंटर है थर्मो रेगुलेशन का। एंड इफरेंट रिस्पॉन्सेज, इफरेंट रिस्पॉन्सेज क्या है, ये ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज हैं जो कि जब बॉडी में किसी भी प्रकार के सेंसेस एफरेंट सेंसिंग के द्वारा हाइपोथैलेमस में जाते हैं, तो इफरेंट सेंसिंग रिस्पॉन्सेस के द्वारा बॉडी में कमांड्स आते हैं जो कि स्वेटिंग, वेसोडाइलेशन,
कंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो सेंसिंग के लिए जो सिंपैथेटिक नर्व्स जाती है और एफरेंट एंड इफरेंट नर्व जाती है, ये थ्रू स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस करती है। अब बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेशन करने के लिए हाइपोथैलेमस में दो सेंटर्स पाए जाते हैं। वन इज हीट लॉस सेंटर एंड अनदर इज हीट गेन सेंटर। तो हीट लॉस सेंटर का काम क्या है कि ये आपके जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है उसमें ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हीट के लिए सेंसिटिव है। ये जो सेंटर्स है, जब कभी हीट रिसेप्टर से ये बॉडी में जैसे गर्म हो गई है, जो रिसेप्टर्स है जो हीट को ले जाके हाइपोथैलेमस को मैसेज दे रहे हैं कि टेम्परेचर काफी बढ़ गया है, तो उस समय ये जो हीट लॉस सेंटर ये काम करते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं। और ये क्या करते हैं, कैसे बॉडी से हीट को लॉस करते हैं, बाय इंक्रीजिंग स्वेट सिक्रीशन और बाय डिक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन। मतलब और हीट को प्रोडक्शन ना करके और स्वेट सिक्रीशन को बढ़ा के ये बॉडी से हीट का लॉस करते हैं। और हीट गेन सेंटर्स जो है वो किस तरह से, ये भी हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट है। ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। ये हीट गेन सेंटर क्या करते हैं, ये किसके के लिए सेंसिटिव है, कोल्ड के लिए। जब कोल्ड रिसेप्टर से हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलता है तो ये क्या करते हैं, बॉडी जो कोल्ड हो गई है, जिसमें मतलब टेम्परेचर कम हो गया है, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए ये हीट गेन सेंटर्स टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो कैसे टेम्परेचर ये बढ़ाते हैं, ये एक तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन मीन जो कैपिलरीज है, जो ब्लड हमारा पेरिफेरल रीजन में आपको कैपिलरीज होती है, वहां पे ब्लड फ्लो करता है। तो जब कैपिलरीज को ये कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वहां से हीट का डिफ्यूजन कम होता है और जो अंदर की गर्मी है वो अंदर ही सेव्ड रहती, बाहर नहीं निकल पाती। और सेकेंडली शिवरिंग कॉज करता है। शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होती है ना। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। पाइलो इरेक्शन करता है। पाइलो इरेक्शन मीन्स जब हमारे को ठंड लगती है तो हमारे हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं और उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, जिससे कि जो कि हीट को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। जो एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू बॉडी में होता है वो भी, उसके लाइपोलिसिस से भी हीट जनरेशन होता है। तो हीट गेन सेंटर क्या करता है, ये सारी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है बॉडी में, जिससे कि हीट या तो जनरेट होती है और या फिर जो हीट बॉडी में है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। तो इस डायग्राम के द्वारा हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये ब्रेन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो है इसको एंटी राइज सेंटर भी कहा जाता है। क्यों एंटी राइज सेंटर कहा जाता है, क्योंकि ये जब कभी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। तो that's why anterior part region is called anti-rise center, because it works against rise temperature. Okay, so this is the posterior part of the hypothalamus. अच्छा, ये जब anterior part stimulate होता है टेम्परेचर बढ़ने से, तो ये क्या काम करता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसको क्या करना है, हीट को लॉस करना है। जो एक्स्ट्रा बॉडी में हीट आ गई है उसको लॉस करना है, बॉडी को ओवर हीट होने से रोकना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, जो एंटीरियर पार्ट है जो कि एंटी राइज सेंटर कहलाता है, टेम्परेचर बढ़ने के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा और ओवर हीटिंग जो बॉडी में हो रही है, ओवर हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको रोकेगा। कैसे रोकेगा, ये वैसोडायलेशन करेगा, कैपिलरीज जो है वो डायलेट हो जाएंगी, जिससे ज्यादा हीट बॉडी से डिफ्यूज होगी बाहर की तरफ और हमारे बीएमआर को कम कर देगा। तो इस तरह से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये सेंटर एक्टिवेट होगा और इस तरह से ये वैसोडायलेशन एंड बीएमआर को कम करके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर देगा। सेकेंड है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इट इज कंसिडर्ड एज द एंटी ड्रॉप सेंटर। एंटी ड्रॉप सेंटर मीन्स जब कभी भी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, नॉर्मल से ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, उस समय ये पोस्टीरियर पार्ट जो कि हाइपोथैलेमस में है ये स्टिमुलेट होता है। और ये स्टिमुलेट होता है तो ये क्या काम करता है,
ये हीट प्रोडक्शन में मदद करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो ड्रॉप हुआ था टेम्परेचर वो नॉर्मल हो और जो अंदर में की हीट है वो अंदर में बची रहे और बॉडी को चिलिंग से बचाता है। तो कैसे ये बचाएगा, क्योंकि ये बीएमआर को बढ़ा देगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, ब्लड कैपिलरीज को कंस्ट्रिक्शन कर देगा, जिससे कि अंदर की हीट अंदर रहे, बाहर ना जा पाए। इट विल कॉज पायलो इरेक्शन, जैसे कि आपको पता है कि बाल हेयर जो है खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर एयर ट्रैप होती है तो इंसुलेशन कोटिंग हो जाती है बॉडी के ऊपर। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस जो है ये मेनली रेगुलेट करता है, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसको कम करता है, टेम्परेचर जब कम होता है तो उसको बढ़ाता है, और इस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को थर्मोस्टैटिक कंडीशन में रखता है। अब अगर हम देखें कि इसके साथ साथ ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये भी एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो है कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की, हाइपोथैलेमस की और जितने भी आपके पेरिफेरल थर्मो रिसेप्टर्स हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। तो इसको देखने के लिए कि कितना ये रोल प्ले करती है, अगर ये यहाँ से थोड़ा सा भी पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड का डिसरप्ट हो जाता है तो बॉडी का थर्मो रेगुलेशन जो मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब और भी देखा गया कि ब्रेन के और कौन से पार्ट्स हैं जो थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसमें देखा गया जैसे सेरेब्रम है, सेरेब्रम का पार्ट को अगर थोड़ा सा कट करके अलग किया जाए या इससे डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो टेम्परेचर रेगुलेशन रिटेन रहता है, क्योंकि यहाँ ये पार्ट जो है किसी भी तरह से ना तो हाइपोथैलेमस को अफेक्ट कर रहा है और ना ही स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से अगर ये पार्ट इसका थोड़ा सा रिमूव किया जाए तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मोस्ट ऑफ द जो मैसेजेस सेंसरी नर्व्स और जाती हैं ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो शो करती है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो के द्वारा होती है। तो जो सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक आउटफ्लो सेंड करते हैं, इसके सिंपैथेटिक नर्व्स भेजते हैं कहाँ पे, पेरिफेरल सर्कुलेशन में, और वो इस तरह से वो हीट का रेगुलेशन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी चीजें पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली हाइपोथैलेमस along with spinal cord कैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी भी तरह से अगर डेविएट होता है या तो वो डिक्रीज होगा किसी कारणवश या फिर वो किसी कारणवश इंक्रीज होगा। तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करता है, इसको बढ़ाना है बॉडी के टेम्परेचर को, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो अब क्या करना है, टेम्परेचर को नॉर्मल लाना है। नॉर्मल लाने के लिए ये दो बॉडी काम करेगी, या तो हीट को लॉस करेगी या फिर हीट को प्रोड्यूस करेगी। तो ये दो काम करने के लिए ये क्या करता है, डिक्रीज टेम्परेचर पहले हीट गेन सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है जो कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, और ये फिर क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा जिससे कि एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा एड्रिनल ग्लैंड से और इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। सेकंड, ये क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा जिससे कि स्वेटिंग जो है वो कम हो जाएगी, जो हीट स्वेटिंग के द्वारा बाहर निकल रही है वो नहीं निकलेगी। तो इस तरह से जो भी बॉडी में हीट लॉस जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। और दूसरा क्या करेगा, शिवरिंग, शिवरिंग से भी आपको पता है कि हीट जनरेट होती है तो इससे हीट प्रोड्यूस होगी, तो शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होगी और बीएमआर जब बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से हीट प्रोडक्शन करके और हीट को लॉस करके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार का ऐसा डेविएशन होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसको फिर ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर किसमें स्टिमुलेट कर रहा है, हीट लॉस सेंटर को। ये प्रेजेंट है एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, जैसे कि हमने आपको डायग्राम में भी बताया है। तो अब ये क्या करेगा, किसी भी प्रकार की शिवरिंग जो है होती है बॉडी से वो उसको टोटली रोक देगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा जिससे कि एड्रेनलिन का सिक्रीशन रुक जाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। और क्या करेगा, ये वैसोडायलेशन करेगा जिससे कि स्वेटिंग बढ़ जाएगी, स्वेटिंग बढ़ेगी तो हीट लॉस ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, हीट लॉस होगा
और इन दोनों चीज़ों से विदाउट शिवरिंग और मेटाबॉलिज्म का रेट कम होने से हीट प्रोडक्शन कम होगा। तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। अब इसके अलावा हाइपो जब आप पढ़ रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर रेगुलेट होता है, तो इसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं। जैसे कोल्ड क्या करता है, आपका TSH एंटीरियर पिट्यूटरी कोल्ड के रिसेप्टर्स के या कोल्ड के स्टिमुलस से TSH सिक्रीट करती है, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन सिक्रीट करती है। थायरोक्सिन का काम क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देना। तो जब ये रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हम ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो हमको कोल्ड से बचाने में मदद करेगी, बॉडी के टेम्परेचर को कोल्ड के अगेंस्ट काम करने में मदद करेगी। और जब कभी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है तो फिर क्या, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होगा। तो इस तरह से थायरोक्सिन जो है कैसे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। सेकेंड हार्मोन है एड्रीनलिन, जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से जब उसको कोल्ड स्टिमुलस मिलते हैं, है ना, क्योंकि वो एंटी ड्रॉप सेंटर की तरह काम करता है, तो कोल्ड स्टिमुलस मिलते हैं तो वो एड्रीनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है, वो एड्रीनलिन सिक्रीट करता है। एड्रीनलिन क्या करेगा, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन के द्वारा हीट लॉस को जो है वो कम कर देगा। तो इस तरह से ये भी अगेंस्ट कोल्ड काम करता है। थायरोक्सिन और एड्रेनलिन जो दोनों हार्मोन्स जो है अगेंस्ट कोल्ड काम करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो कि बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एज, है ना, तो जितने लो एज ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें BMR कम होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने के कारण उनमें कंपैरेटिवली बॉडी टेम्परेचर कम होता है। और जैसे बच्चे हैं, बच्चे अगर क्राइंग करते हैं, रोते हैं, तो उनका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। साइज, बॉडी की साइज के ऊपर भी टेम्परेचर का लॉस डिपेंड करता है, बिकॉज हीट प्रोडक्शन एंड लॉस इज द रेशियो ऑफ मास टू द बॉडी सरफेस एरिया। तो उसके बेसिस पर हीट लॉस बॉडी से होता है। सेक्स, जैसे फीमेल्स है, फीमेल जो है उनमें लो मेटाबॉलिक रेट होने के कारण उनमें भी बॉडी टेम्परेचर कंपेयर टू मेल जो है वो डिफरेंट रहता है। मतलब मेन डिफरेंस कहाँ हमको देखने को मिलता है, केवल पेरिफेरल पार्ट में, है ना। लो, और जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टेम्परेचर कम हो जाता है और फीमेल्स में 24 to 48 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन अगर देखा जाए तो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो इसलिए इस जो करेक्टरिस्टिक का यूज प्रेगनेंसी टेस्ट करने में भी किया जाता है। फूड है, जब फूड हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसके इंगेशन से भी टेम्परेचर बढ़ता है। डायरनल वेरिएशन, डायरनल वेरिएशन मीन्स कि हमारी बॉडी में दिन में शाम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस टेम्परेचर में आता है। जैसे कि अगर हम सुबह सुबह उठ के बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं तो कम आएगा, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेज में रहती है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। बट अगर आफ्टरनून में या इवनिंग में लेते हैं तो टेम्परेचर राइज आपको देखने को मिलेगा। और फैक्टर्स हैं जैसे एक्सरसाइज, जब कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो कभी करीब करीब 25% मस्कुलर एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसके अलावा जो वेस्ट एनर्जी है वो हीट के रूप में बाहर निकलती है। जैसे हमको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उससे ये बाहर निकलती है। जब हम सोते हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी कम होने के कारण टेम्परेचर कम हो जाता है। इमोशनली जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं या जो भी इमोशंस के कारण हमारे टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। कोई एनेस्थेटिक्स हमको दिए जाते हैं किसी सर्जरी के दौरान या किसी दौरान, तो वो क्या करते हैं, हमारी जो असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू वो उसको डिप्रेस करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। जब कभी हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स मीन्स फीवर की मेडिसिन लेते हैं
तो वो डायरेक्ट हमारे हाइपोथैलेमस पे वर्क करती हैं, और हाइपोथैलेमस उस समय क्या कर देता है, वेसोडायलेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि स्वेटिंग होती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर आसानी से उतर जाता है। पैथोलॉजिकल वेरिएशन, तो एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होता है, कोई भी इन्फेक्शन जो कि हमारे हाइपोथैलेमस को अगर अफेक्ट करता है, तो वो इट कैन कॉज आइदर हाइपर और हाइपोथर्मिया. So this is all about temperature regulation of the body. These are the references from where I have collected all material. Thank you very much.